السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنب والصحاب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تمام تعریف تحمد و ثنا رب ذوالجلال اس کنت بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس آلس تامت. یت پٲٹھۍ تُہۍ زانان چھِو کہ پٔتِم کینٛہہ درس بلکہ پٔتِم زٕ درس وٲتۍ اَسہِ حقوٗق العبادن متعلق پران. اتھ منٛز پوٚر اَسہِ کہ ساروی کھۄتہٕ گۄڈنٮ۪تھ ییٚمہِ سُنٛد حق یا یِم حق ساروی کھۄتہٕ مقدم چھِ وہ تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. پھر مخلوق میں سب سے پہلا اور اولین حق والدین کا ہے. پھر وبذی القربیٰ پھر قرابت داروں کا یعنی قریبی رشتہ داروں کا. اس کے بعد یتیموں کا، پھر مسکینوں کا، پھر پاس والے پڑوس یا ہمسایہ جو رشتہ دار بھی ہوں، اور پھر پڑوس میں جو دور کے پڑوس ہوں، اور پھر ساتھ والا. ساتھ والے سے مراد ہے کہ جو کسی مجلس میں، کسی سفر میں یا کسی کام پر یا کہیں پر بھی آپ کا ہم ساتھی ہو. بہرحال اتھ منٛز چھُ یِوان اگر جہازس مز یا سوموس مز لڑ سیٹس یہ بھی صاحب بالجنب میں آتا ہے. ہوٹل کے کمرے میں اکٹھے دو آدمی ہیں تو یہ بھی صاحب بالجنب ہیں. اتھے پٲٹھۍ ٹریننگ ہالس مز زٕ نفر یکوٹے یا سٹوڈنٹ زٕ کلاسس مز یہ سب صاحب بالجنب میں آتے ہیں یعنی پاس والا. ان کے بھی حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے ہیں. اور آخر پر کہا گیا وابن السبیل جو راستے چلتے ہوئے راہ گزیر آس. وما ملکت ایمانکم اور جو آپ کی تحویل میں ہوں یا جو آپ کے زیر نگرانی ہوں یعنی ملازم اس سے مراد ہیں اور غلام بھی. اب اس آیت کا دوسرا ٹکڑا جو ہمیں کل پڑھنا تھا مگر وقت کی کمی کی وجہ سے ہم نے اس کو پھر آج کے دن پر بہرحال مؤخر کیا تھا. امہ آیتک یُس زن دویم ٹکڑ چھ بہرحال اس آیت کا یہ ٹکڑا اور دو آیتیں اس کے بعد جو آتی ہیں ات مز آمت وجہ بیان کرنا کہ اخ انسان کیازِ چھُنہٕ حقوق العباد ادا کران. یعنی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں. اچھا بنیادی وجہ کیا ہے کہ اخ انسان کیازِ چھِ یمو حقوق العبادو نش پتھ رٹان یا حقوق العبادن مز کیازِ چھُ سُہ کمی ہاوان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین کمزوریوں کی نشاندہی کی ہے جن کمزوریوں کی وجہ سے ایک انسان حقوق العباد میں کوتاہی برتتا ہے. تم کمزوری کیا چھ الذین یبخلون. تو پہلی کمزوری ہے ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. یہ پہلی ہی آیت کا ٹکڑا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا ہے من کان مختالا جو کہ متکبر ہو. مختالا و فخورا اور فخورا سے مطلب ہے شیخی بغار. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز متکبر اور شیخی بگارنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. کیا مطلب ہے اس آیت کے ٹکڑے کا؟ آت کس کا حوثی جوڑ. بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں جو بھی انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، جو بھی آدمی اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، جو بھی انسان اپنے قرابت داروں کے حق ادا نہیں کرتا ہے، اصل میں اس کے دل میں کبر ہوتا ہے. اصلی آسان تم سندس دلس مز کیا مرض؟ اس کے دل میں یہ کبر ہوتا ہے یا وہ متکبر ہوتا ہے یا وہ شیخی بگارنے والا ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ ان لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا ہے. یہ وجہ کہ امیشن چکائرے کھسن یم یعنی یہ اپنے آپ کو ان سے بہت بڑا تصور کرتا ہے،
इसलिए इनके साथ मिलना, इनके साथ जुलना या इनकी हाजत रवाई करना या इनके गम और खुशी में शरीक होना ये पन्निस स्टेटस बराबर समझन क्या। तो ये पहला मर्ज है और ये पहली कमजोरी है जिसकी वजह से एक इंसान हुकूकुल इबाद में कोताही बरतता है। वो क्या है कि इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखीरा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला मुतकब्बिर और शेखी बगारने वाले को पसंद नहीं करता है। बहरहाल मुतकब्बिर इंसान यु जन आसन छ तमिस छ पन्निस अथ स्टेटस खिलाफ बासन कि बह क्या गस अमिस गरीब हमसाय सुंद घर, तमिस यह बासन पन्निस स्टेटस खिलाफ कि बह क्या कर मालिस माज थफ या बह क्या कर मालिस माज हिंस खिदमत, पत क्या कर अमिस दिम बह मोट। बहरहाल ये इसके स्टेटस के बरखिलाफ इसे लगता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर सबसे पहले किस मर्ज की निशानदही की, अमी किब्र। बहरहाल ये किब्र कोता खतरनाक और संगीन गुनाह याद गछ थाउन। क्या गुनाह तम यम जन ज़ाहिरी गुनाह। ज़ाहिरी गुनाह गो मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला बचाइन, कोई चोरी करता है, कोई जिना करता है, कोई गीबत करता है, यम गई ज़ाहिरी गुनाह। या कोई नमाज तरक करता है, ये ज़ाहिरी गुनाह है, ये भी गुनाह है। मगर इनसे बढ़कर बातनी गुनाह है। उलमा लिखते हैं कि इनसे भी खतरनाक कौन गुनाह है, बातनी गुनाह। बातनी गुनाह कुछ कुछ मिसाल के तौर पर बातनी गुनाह मिसाल के तौर पर यही किब्र जो है ये बातनी गुनाह है। इसी तरह बुग़्ज़ ये भी बातनी गुनाह है। इथे पटन शिरक करन ये किस्म बातनी गुनाह असली। तो ये बातनी गुनाह ज्यादा खतरनाक है किन के मुकाबले में, ज़ाहिरी गुनाहों के मुकाबले में। अच्छा, हदीस में आमद इस मुतकब्बिर इंसान के बारे में आया है, फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह तबारक व तआला हरगिज उस शख्स को जन्नत में दाखिल नहीं करेगा जिसके दिल में राई के बराबर भी किब्र होगा। यमिस इंसान से दिलस मज खशखाश दानस या गुनहर दानस बराबर ति किब्र आए तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत को क्या करते हैं, हराम करते हैं। और अकिस हदीस हदीस कुदसी छी फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह तबारक व तआला हसा छ फरमावन कि अल किब्रिया और रिदाई कि किब्रियाई यजन या ये किब्र या ये बजर यजन छ ये अल्लाह की चादर है। ये अल्लाह का क्या है, ये अल्लाह ताला से लिबास, अल्लाह की चादर है। जो कोई इस चादर के बारे में अल्लाह से झगड़ा करेगा, यानी क्या मुराद है इसे, यानी जो कोई इस चादर को ओढ़ना चाहेगा, अपने आप को बड़ा समझेगा, अपने आप के ऊपर तकब्बुर करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर उसको जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह तबारक व तआला त्राय इस कथ मज जहन्नमस मज। तो युता खतरनाक गुनाह कुस और इतना खतरनाक बातनी गुनाह ये किब्र और तकब्बुर है। बल्कि हदीस में आमद फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन कुछ लोग अल्लाह के दरबार में चोटियों की तरह रेंगते हुए आएंगे। यानी क्या इंसान इन कयामत दो खुदायस ब्रोट कई तुम हालत रेयन हिंद पे आसन तो पकड़ और लोग उनको मसलते हुए आगे बढ़ेंगे और लोग आसन मांडर कथ मज ये रेयन आज मांडन पकन पाशा लगन क्या गो खोरसल, ऐसे ही इनका हाल होगा। तो फरमाया ये रसूल ने ये वो लोग होंगे जो दुनिया में लोगों को हकारत की नजर से देखते होंगे। यानी यम आसन तुम लोग यम जन दुनिया मज पानस पे किब्र आसन करन, तकब्बुर आसन करन और बाकी लुकन आसन हकारत के नजर से वुचन। तो इसका नतीजा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला इनको जलील करके और हकीर बनाकर कयामत के दिन अपने सामने पेश करेगा और लोग इनको मसलते हुए और रोनते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये गोडनिच बेमार जिसकी वजह से एक इंसान बाकी हुकूक या हुकूकुल इबाद अदा नहीं करता है। कुदरती कथा यमिस इंसान सिर्फ दिलस मज तकब्बुर आस, यमिस इंसान सिर्फ दिलस मज ये गुमान आस कि बुछुस का बोड़ चीज, वो यतीम को कैसे हाथ लगाएगा, वो मिस्किन को कैसे हाथ लगाएगा, या वो इसी तरह जो राह गुजीर आस तमिस कत कर सु मदद। तो इसीलिए सबसे पहली जो नहुसत और सबसे पहला गुनाह या सबसे पहली कमजोरी जो इन हुकूकुल इबाद को अदा करने में मान्य बनती है वो ये तकब्बुर है। ये तो पहली आयत का टुकड़ा था। अब दूसरी आयत जैसे आज अल्लज़ीना यबखलूना व यामुरूना अन्नास बिल बुख्ल। अब दूसरी वजह या दूसरा मर्ज या दूसरी कमजोरी जिसकी वजह से एक इंसान हुकूकुल इबाद में कमजोरी दिखाता है वो है बुखल। सुशी क्या बुखल क्या इस, क्योंकि जब यह हुकूक अदा करेगा कुदरती तौर पर इसे कभी अपना माल भी इनके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये वन कि हमसाय सिंह हुकूक, ये वन मालिस माज हिंद हुकूक अदा कर, ये वन कि चे यतीम सिंह हुकूक अदा कर। यहाँ कहा गया कि आपको मिस्किन के हुकूक अदा करने हैं। तो कुदरती तौर पर इसका मतलब यह है कि अगर कोई यतीम होगा उस पर तो हमें माल खर्च करना होगा तभी हम उसके हुकूक अदा कर सकेंगे। इतने पटनस हमें कभी उसको खाना खिलाना होगा, माँ बाप के लिए हमें एक दवा दारू का इंतजाम करना होगा। तो अगर एक इंसान ये सोचेगा कि मैं पे पोंस खर्च, मेरा माल खर्च होगा, मेरा वक्त इस पर खर्च होगा, तो
अगर इंसान आत्मज कंजूसी करे, बखुल करे, बताओ क्या वो ये हुकूक अदा कर सकता है? इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा मर्ज और दूसरी बीमारी जिसकी वजह से एक इंसान इन हुकूकुल इबादत को अदा करने में कमजोरी और कोताही दिखाता है, वो है बुखल। सच क्या? बुखल। अच्छा, बुखल किसा मजम्मत आमज, इस बुखल की इतनी मजम्मत कुरान पाक में और अहादीस में आई है कि अगर उन अहादीस को जमा किया जाएगा, बहरहाल इंसानस गژھِ हैरत कि यह अल्लाह ताला से वतन खर्च कर यह बड़ इबादत है। बल्कि हदीस में आमुत फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि हर रोज 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं, यानी प्रत दोष आसमान पे 2 फरिश्ते नाजिल गसन और वो आवाज देते हैं और वो मुनादी देते हैं। तुम आवाज दिवन नाद लायन, क्या मुनादी देते हैं कि ए अल्लाह जो तेरे रास्ते में माल को खर्च करे उसके माल में बरकत अता कर। खुदाया युस चाहे वत मज खर्च करे तमिस कर मालस मज क्या बरकत, और जो कोई तेरे रास्ते में माल को रोके रखे अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को बर्बाद कर दे। यानी यम कुम हर दिन ये फरिश्ते मुनादी करते हैं, यानी दुआएं मांगते रहते हैं अल्लाह से कि खुदाया युस चाहे वत मज माल खर्च करे तमिस कर बरकत, तमिस सो ज्यादा युस रुकाई तमिस माल कर क्या बर्बाद। अगर हम आज देखेंगे, आज हमारी हालत शायद यही है कि अच्छी खबर कुता ज़हनन मगर बरकत नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्यों? शायद ये इसकी वजह से है कि हमने अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करना बंद कर दिया, और शायद ये फरिश्तों की वो मुनादी है जो हमारे हक में शायद अल्लाह बचाए कबूल हो रही है। 20 हदीस में फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमो 2 खसलतें ऐसी हैं जो मोमिन में कभी जमा नहीं होंगी, यानी 2 खसलत तुम यम मोमिनस में जहन ति जमा गसन। उनमें से फरमाया कि एक खसलत बुखल है, यानी आगो क्या बुखल, और दूसरा है अमानत में खयानत, यानी यम खसलत यम गसन जहन ति मोमिनस मज जमा। अच्छा, ये हदीस मैंने बार बार आपको सुनाई कि रसूलुल्लाह फरमो कि अस्सखी करीबुम मिनल्लाह, सखी जो होता है वह अल्लाह के क्या होता है करीब, व करीबुम मिनन्नास और वो लोगों के भी करीब होता है, व करीबुम मिनल जन्ना और वो जन्नत के भी क्या होता है करीब, अल बखील व बईद मिनन्नार और ये नार से क्या होता है दूर होता है, अल बखील बईद मिनल्लाह जो बखील होता है वो अल्लाह से दूर होता है, व बईद मिनन्नास और वो लोगों से भी दूर होता है। क्या जब वो खर्च नहीं करेगा तो उसको अपने साथ कौन लगाएगा? तमिस आशा सोसाइटी में इज्जत, तमिस आशा लुकन निश इज्जत। व बईद मिनन नास व बईद मिनल जन्नह और वो जन्नत से भी क्या होता है दूर, व करीब मिनन नार और वो नार के करीब होता है। और तिरमिजी शरीफ में आख रवायत भी आख हरफ थी जोड़मत, वो ये है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सखी जाहिल इंसान, सखी जाहिल मुसलमान वो आबिद बखील मुसलमान से बेहतर है। खुद अंदाजा कीजिए, सखी जाहिल मुसलमान ये बखील आबिद मुसलमान से बेहतर है। ये फजीलत अल्लाह ताला से वाति मज खर्च कर। और हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा सच रवायत करन कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत की। एक साथ हसा कर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत। हजरत अस्मा और हजरत आयशा सिद्दीका सज यजन बेय बड़ आख बेय हजरत अस्मा, इसके बाद थी कौन हजरत आयशा। इनसे हजरत अस्मा कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नसीहत, और नसीहत क्या करस फरमोहस अस्मा अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो। अस्मा खुदा से क्या करन खर्च कर, और अल्लाह के रास्ते में माल गिन गिन कर मत तकसीम करो, यानी खुदा से गुंजराइत माल दियो कि अगर ऐसा करोगी तो अल्लाह भी गिन गिन कर आपको देगा। अगर ये करे खुदा क्या करी सह त्राई गुंजराई यानी लिमिटेड अमाउंटस मज दी। अगर अल्लाह के रास्ते में दिल खोल कर खर्च करोगे तो अल्लाह भी आप पर खोल कर खर्च करेगा। अल्लाह तबारक व तआला पे क्या खोलियत खर्च। और 20 हदीस में फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो अल्लाह के रास्ते में, ये तो हमने पढ़ा है कुरान, हमने कुरान की जब ये तफसीर शुरू की थी उस वक्त मैंने ये हदीस आपको सुनाई थी कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमो कि हसद कारुन जायज क्या, मगर हसद करना सिर्फ 3 आदमियों पर जायज है। उनमें से एक शख्स वो है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल अता किया हो और वो रात दिन इस माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हो। बहरहाल ये तनसा दयम चीज वन अल्लज़ीना यबखलूना, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में बुखल करते हैं, यानी तुम लोग हिमसन क्या करन बुखल करन। व यामुरुन नासा बिल बुखल, इतना ही नहीं सिर्फ बुखल खुद ही नहीं करते हैं, व यामुरुन नासा बिल बुखल बल्कि लोगों को भी अल्लाह के रास्ते में
खर्च करने से रोकते हैं, यानी तुमन कमिच तालीम दिवान, बुखलच तालीम दिवान। बहरहाल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु वो इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि ये आयत यहूद के बारे में नाजिल हुई है। ये आयत कौन मतलब नाजिल, क्योंकि यहूदी माल को गिन गिन कर रखते थे। अगर तक आज तक वुचू यहूदी कौम इनको माल के साथ इंतहाई ज्यादा मोहब्बत है, यम माल थावन जमा, और ये जो सूदी निज़ाम दुनिया पर मुसल्लत किया है, ये किन्होंने किया है? ये असल में यहूदियों ने ही मुसल्लत किया है, क्योंकि इनके माल के साथ इंतहाई मोहब्बत है। क्वालिटी ये माल थावन जमा। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में जो सहाबा माल खर्च करते थे, क्या सहाब साहब अल्लाह तबारक व तआला ने ये सिफत दितमत, जब भी हुक्म होता था कुरान का, जब भी रसूलुल्लाह का हुक्म आता था कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तो तारीख और सीरत की किताबें भरी पड़ी हुई हैं कि महबूब तरीन बाग सुध को तुमो कुन सातरस खर्च। कभी उनके पास कोई कुआं होता था, वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। किसी के पास हजरत अबू बकर के बारे में हमने पढ़ा कि पूरे घर का माल वो लाए थे। हजरत उमर के बारे में हमने पढ़ा कि नस्ब माल लाए थे। यो साहब साहबन क्या तरीक माल खर्चा। तो यहूदी ये जो खबीस थे, ये तो एक खुद भी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं कर, दूसरा ये सहाबा को भी वर्गलाते थे कि अल्लाह के रास्ते में क्या माल खर्च करते हो। अतः यश बर नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, क्या आपसे ये वादे करता है या आपको ये माल मिलने वाला वापस, और बज़ाहिर ये माल खर्च करने से आपका माल क्या होगा, कम होगा। तो इन्हीं लोगों के बारे में कहा गया अल्लज़ीना यबखलूना, वो लोग जो बुखल करते हैं, व यामुरुना नासा बिल बुखल, और जो लोगों को भी इस बुखल की तालीम देते हैं, यानी लोगों को भी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से रोकते हैं। व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह, और उस चीज को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको दिया है। इसके दो माना मुफस्सिरीन ने लिखे हैं कि एक तो वो उस फजल को छुपाते हैं जो अल्लाह ने उनको दिया, यानी इससे मुराद माल भी हो सकता है, यानी इस माल जिस अल्लाह ताला फजल, इसको ये छुपाते हैं, यानी ये लुकन निश थावन खटित कांसी वन कि मैं को माल क्यों, ताकि ऐसा ना हो कि मुझे इन पर ये माल खर्च करना पड़ा। और दूसरी तफसीर इसकी ये भी है कि यहूदियों के पास एक और फजल भी था। वो फजल क्या था? वो अल्लाह का इल्म, सोच अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया, यानी इनके पास किताब का इल्म था, और ये लोगों से उस इल्म को छुपाते थे। तौरात और इनकी इंजील की किताबों में लिखा हुआ था कि एक नबी आने वाले हैं, आखिरी नबी, उनकी ये अलामात होंगी, और वो जानते भी थे कि ये आखिरी नबी कौन है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तरफ भी इशारा किया कि इस फजल को जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दिया है, इसमें भी ये बुखल बरतते हैं। इस आयत से पता चला, हज़रत अब्बास फरमान, इस आयत से पता चलता है कि अगर किसी के पास इल्म होगा और इल्म में भी अगर वो बुखल करता है तो वो भी बखीलों में शामिल होगा। ठीक है, यमिस इंसान माल दियो पत माल अल्लाह ताला से वतमस खर्च के, उस पर भी ये वईद है। और यहाँ इल्म के बारे में भी आया है कि यहूद के पास तो अल्लाह ने इल्म दिया था, मगर वो इस इल्म को छुपाते थे। तो इससे पता चला कि अगर किसी आलिम के पास, या अगर कोई आलिम होगा और वह सही मसला लोगों से छुपाए, या लोगों को वो इल्म ना पहुंचाए, वो भी किन की साफ में शामिल होता है? इन्हीं बखीलों की साफ में शामिल होता है। अल्लाह ताला फरमान अल्लज़ीना यबखलूना, वो लोग जो बुखल करते हैं, व यामुरुना नासा बिल बुखल, और लोगों को भी बुखल की तरगीब देते हैं, या लोगों को भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से रोकते हैं। व यक्तुमूना, और छुपाते हैं, मा आताहुमुल्लाह, जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अता किया, मिन फज़ली, अपने फजल से। मुराद इल्म भी हो सकता है, मुराद पैसा या माल भी हो सकता है। व अअतदना लिल काफिरीना अज़ाब मुहीना, अल्लाह तबारक व तआला फरमान व अअतदना लिल काफिरीना, और हमने तैयार करके रखा है किन के लिए? काफिरीन के लिए, अज़ाब मुहीना, दर्दनाक अज़ाब। अच्छा, यहाँ किन का जिक्र चल रहा था? बखीलों का। ये दोनों चलन कमान है जिक्र, और बखीलों के लिए कौन सा लफ्ज लास्ट पर लाया गया? व अअतदना लिल काफिरीना, हमने काफिरों के लिए तैयार करके रखा। पता चला कि अल्लाह के रास्ते में जानबूझकर बुखल करने वाला, उनको क्या कहा गया है? काफिर। तो मौलाना तकी उस्मानी लेखन ये भी हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको काफिर ही गर्दानता हो। और काफिर का एक और तर्जमा उन्होंने ये भी यहाँ किया है, काफिर का मतलब है नाशुक्रा भी, यानी उनको तो अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया था, उनको तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फजल दिया था, चाहिए यह था कि ये इस पर शुक्र करते और अल्लाह के रास्ते में इस माल को खर्च करते, मगर चूंकि इन्होंने खर्च नहीं किया, नाशुक्री की, काफिर कहते हैं नाशुक्रे को भी, इसलिए यहाँ पर कहा गया वअतदना लिल काफिरीना, और हमने नाशुक्रों के लिए तैयार करके रखा है अज़ाबम मुहीना, दर्दनाक अज़ाब। इससे पता चला
कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कोई सलाहियत किसी इंसान को दी हो, चाहे वो कोई भी सलाहियत हो, माल हो या वो इल्म हो या कोई और चीज़ उसके पास हो, अगर वो इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च न करे तो वो भी नाशुक्रा ही गर्दाना जाएगा, सुती कुमन में शुमार करना, नाशुक्रान में काफिरन मजी, और काफिरों का हशर क्या होगा, अजाब मुहीना, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा है। बहरहाल आज किस दरसस में तारे ज़िकत फिक्र गोडनिच कथ यह कि हुकूकुल इबाद यम जन अस पे आयद गसन वो कौन कौन से और दर्जा उनका क्या है। दयम कथ तर फिक्र कि कम चीज यम हुकूकुल इबाद यम जन अदा करनस में अकिस इंसानस रुकावट बन। पहली रुकावट किब्र है और पहली रुकावट अपने आप को कोई बड़ी चीज तस्वर करना है। उसकी क्या कबाहतें हैं, तमिज क्या वही वो मैंने आपको बताया। दूसरा हमने ये पढ़ा कि दयम चीज अल्लाह ताला इन हुकूकुल इबाद अदा करनस में गसन मान्य और रुकावट बनन वो है बुखुल। बुखुल अमिच क्या कबाहत, अमिच वही और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की क्या क्या फजीलतें हैं वो भी हमारे सामने आ गया। और बुखुल करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सा अजाब रखा है, बहरहाल वो भी हमारे सामने आ गया। आखिरी कथ वन बह ये अल्लाह ताला से वत मज खर्च कर इसके दो दर्जे हैं। ये समझिए था, ये अमली जिंदगी के साथ हमारे साथ ताल्लुक रखने वाली बात है। अल्लाह ताला से वत मज खर्च करना कस दर्जे एक हो गया फर्ज खर्च करना। फर्ज खर्च को जो लाजमी तौर पर खर्च करना है, अगर खर्च नहीं करेंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें ज़कात आती है। अगर किसी शख्स पर ज़कात आयद होती है, अगर सपाती ज़कात रुकाए तो ये गुनाहगार होगा, ये हराम है और इसको इसका अजाब चखना होगा और ये गुजर गुनाहगार। इसी तरह उशर जो है ये भी एक इंसान पर फर्ज है। अगर इस उशर को ये रोकता है तो ये गुनाहगार होगा, ये हराम है और इसको इसका अजाब चखना पड़ेगा। इधर पर सदकातुल फितर जो वाजिब सदकात हैं, बहरहाल ये भी अगर कोई इंसान रोकता है ये भी हराम है, इस पर भी शदीद वईदें हैं। इसके बरक्स यमजन हम इसके अलावा अगर अल्लाह के रास्ते में कहीं खर्च करना हो या यमजन मुस्तहब खर्च या यमजन बेहतर खर्च, अगर उनके रास्ते में रोकता है इंसान, गुनाहगार तो नहीं होगा, मगर बहरहाल ये बहुत बड़ी महरूमी है और ये बहुत बड़ी सआदत से अपने आप को महरूम करना है। इसलिए हमेशा मौका गनीमत जानना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से वत मज गस क्या माल खर्च कर। बल्कि आखिरी कथ वन रसूलुल्लाह फरमो कि 5 चीज जानियो गनीमत कतो चीजों पर, 5 चीजों से पहले उसमें एक चीज रसूलुल्लाह ने ये गिनवाई है कि गिना का कबला फकरिक, यानी चाहे दौलत चाहे अमीरी ये जान गनीमत कम ब्रो फकरो फाका इन निश अल्लाह ताला बचाइन। हमने वो मंजर भी अपनी आंखों से इस जमाने में देखे कि कल कोई करोड़पति था मगर ऑनलाइन गेमिंग की वजह से या किसी और मुसीबत की वजह से कल को वो फकीर था। हत्ता कि हमारे सोसाइटी में भी ये ऐसी मिसालें हैं। अल्लाह ताला बचाए, कल करोड़पति, कल को टेस्ट किया ऐसी बीमारी लाहक हो गई, लाखों रुपए खर्च हो गए, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है बल्कि वो भीख मांगने के लिए और लोगों से मांगने के लिए बहरहाल मजबूर हो जाता। कितना अच्छा है कि अल्लाह तबारक व तआला यस ऐसे विकेनस मोहलत दिसमज, हम इस मोहलत को गनीमत जाएं और अल्लाह के रास्ते में अपने माल को खर्च करें। माल ही होता नहीं क्या, अपने इल्म को, अपनी सलाहियतों को, अपनी तवानाइयों को हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अल्लाह ताला से मगो दुआ कि सुदीन ऐसी मन आयात पर अमल करने तौफीक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।